जिस तरह से सामाजिक स्थिति वहाँ की बिगड़ गई है, खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चों को धमका रहे हैं। कई बच्चे यहाँ से मासूम बच्चे के रूप में गए, वहाँ जाकर क्रिमिनल बन गए। जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो सरकार के निज्जर हत्याकांड को लेकर भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद बड़ा कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कनाडा में भारतीय राजनयिक रहे संजय वर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान कनाडा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह को लेकर उसकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की तरफ से उन पर की गई टिप्पणी को एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने जैसा कहा। आपको सुनाते हैं वो पूरा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत कनाडा संकट कैसे खड़ा हुआ। I would have said welcome back to India, but I don't think these are the circumstances under which you would have wanted to come back to India. Thank you very much for having me here, and I always believe that Janani Janmabhoomi Sarvatapi Gardeshe. So my birthplace is always the most beautiful place in the world. Let's talk a little bit about the unsavory incidents over the past week or so. Can you just take us through the timeline of how it happened? On October 13th, I think, is when you were told by the Canadians. Just talk us through what exactly happened. So I was on a visit to Toronto. I was sitting at the airport. I received a message from my interlocutor in the Global Affairs Canada, which is the Foreign Ministry in Canada, to come to the Foreign Ministry in the evening. Unfortunately, I was not available because I was flying back on the 12th. And then on the 13th, they agreed to receive me in the morning. So I and my Deputy High Commissioner. And this came to me as a shock, and rest you know what happened. Yeah. Did you how did you take it? Did you take it with equanimity? Were you expecting it in the first place, or did it come as a complete surprise? No, I was not expecting it. Generally, such summons I have faced earlier as well in Canada. But in such summons, what happens is that they give you a message to be conveyed back home. And it won't be something of the kind that you yourself are a person of interest in an investigation. अपने शक्ल पे कुछ नहीं दिखाया? शक्ल पे बिल्कुल कुछ नहीं, कोई शिकन भी नहीं। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि पता नहीं ये कौन सा इंसान है जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि मैंने उन लोगों को कोई भी ये खुशी नहीं दी कि ये उदास है। जी। और या डर गया हूँ मैं, या मैं डर गया हूँ। और आपको सिर्फ 4-5 दिन दिए गए थे कि आप छोड़ के चले जाइए कनाडा। तो मुझे जो हमारी डेडलाइन थी वो थी 19 अक्टूबर कनाडा का टाइम, ऑटवा का टाइम। कनाडा में बहुत सारे टाइम्स है, तो ऑटवा के टाइम से 11:59 रात्रि अक्टूबर 19। और अगर आप ना जाते तो शायद आप अरेस्ट भी हो सकते थे। अगर मैं नहीं जाता तो मेरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ख़त्म हो जाती और मैं उनका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है उसमें मुझको जबरन शामिल किया जाता। आपने 36 साल के अपने डिप्लोमेटिक करियर में आप जापान के एम्बेसडर रहे हैं, सूडान के एम्बेसडर रहे हैं, कौंसल जनरल रहे हैं कई जगह पे, आप कनाडा के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर। आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। डू यू थिंक दिस इज, वेयर वुड यू रैंक दिस? इज इट लाइक द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू हैव एवर हैड? इफ they really believe that it is a large relationship for them as well, there are other diplomatic tools available in the hands of a diplomat, and those tools could have been used in order to see things falling in place as they had wished. This is not the kind of behavior or an experience that you would expect from a thriving democracy. Absolutely not. And all this is because of the Khalistan problem. Can you just tell us a little bit about the genesis of the Khalistan problem in Canada, basically? How did Canada become a hotbed of this movement? See, Canada had been a place where migration from India took place from early 20th century, so 1900s, early 1900s. And in fact, first when the first ship arrived there, a Japanese ship which had Indians, at that time we were still a colony of Britain,
So when they arrived, the Canadians did not allow them to berth. And many Indians on that ship perished without food. So a lot of atrocities are there in the history on people of Indian origin. And after a lot of persuasion, but also due to fear of a backlash globally, the ship was allowed to dock in Vancouver. Then they got down. So that was the first larger wave of our brothers and sisters going from here to Canada. A number of them were in the Sikh community. They were absolutely patriotic Indians. They kept the Indian flag flying high. They could not get their voting rights till 1940s. Many of pro-Khalistan elements, including extremists and terrorists, they found refuge in Canada. And now I'm talking about 1980s. So they found refuge in Canada due to lenient Canadian legal system. They were able to get their permanent residence in Canada, citizenship in Canada. They sought asylum in Canada on fictitious grounds. And all of them then settled down there. Okay, so this whole unsavory incident that has happened, is it irreversible or is there a possibility कि अगले साल जब अगर इलेक्शंस होते हैं कनाडा में तो थिंग्स विल बिकम नॉर्मल? देखिए, ये जो होना था वो हो चुका है और एक भारतीय होने के नाते, केवल हाई कमिश्नर के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों देशों के बीच का संबंध बेहतर हो, लेकिन वो बेहतर हो इस कारण से नहीं कि हम बेहतर करना चाहते हैं, और हमारा कोर कंसर्न बहुत क्लियर है, कई बार बताया जा चुका है हमारे कनेडियन मित्रों को कि हमारा कोर कंसर्न है वहाँ से एंटी इंडिया एलिमेंट्स, जो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स और टेररिस्ट्स वहाँ पर हैं, जो चैलेंज करते रहते हैं इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, उन्हें किसी ढंग से उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने के कारण भी जैसे ही हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हो जाते हैं तो एक तरह से कन्वेंशन है, मानकर हम चलते हैं कि दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हम बुरी नज़र नहीं डालेंगे। तो अगर कोई बुरी नज़र डालता है, और ये जितने खालिस्तानी हैं वहाँ कनाडा में बैठे हुए सब कैनेडियन नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो भारत का भविष्य क्या होगा ये भारतीय तय करेंगे, ये विदेशी तय नहीं करेंगे। और वो विदेशी हैं, कनाडा में भारतीय मूल के जरूर हैं वो, लेकिन वो हमारे लिए विदेशी हैं। विदेशियों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने का कोई अधिकार न था, न है, न रहे। भारत ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इस हाल में जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है वो कैसे हो सकती है? हमने कोई एविडेंस उनको दिया है कि आप इस तरह से प्रोत्साहन कर रहे हैं आतंकवाद का? देखिए, प्रोत्साहन दोनों तरह से हो सकता है। एक एक्टिवली उनको कहा जाए कि तुम ऐसा करो, और दूसरा है कि तुम करते रहो, मैं चुप बैठूंगा। तो अगर जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वोट बैंक के लिए हो या फिर कोई और राजनीतिक कारण के लिए हो, इस प्रोत्साहन के कारण वो एम्बोल्डन हुए हैं और वो लगातार भारत के जो इंटरेस्ट्स हैं उसको अटैक करते रहते हैं, उसको हार्म करने की कोशिश करते रहते हैं। Many Indians send their children to study in Canada. तो उनके दिमाग में ये है कि अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बच्चों पे, उन बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी अब बीच में, पढ़ाई करने के बाद में उनको नौकरी शायद ना मिले, तो बिकॉज कैनेडा इज ऑलवेज सीन एज अ ग्रेट प्लेस टू सेंड योर चिल्ड्रन एज इफ यू कैन अफोर्ड इट, तो आप हाउ विल यू एश्योर दोज पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा मैं इससे इतर होते हुए बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे बच्चे वहाँ गए हैं, क्या वो वास्तव में वो पा रहे हैं जो कि जिसकी वो कल्पना करके गए थे? आज अगर मैं सही ढंग से देखूं तो एक एक कमरे में 8-8 बच्चे रह रहे हैं। वो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन उनका है जिसमें कि पूरे सप्ताह में एक क्लास होता है। वो सारा दिन
किसी दुकान पे काम करते हैं डेली वेज के रूप में, और सभी अच्छे घर के बच्चे हैं। वो चूंकि वहाँ पर क्लास सप्ताह में अगर एक दिन हो रहा है, सपोज करें कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ने गया है, जब उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई ख़त्म की तो मैं मानूंगा क्या कि वो इंजीनियर की नौकरी करेगा। आप देखेंगे वो ड्राइविंग कर रहा है, उबर चला रहा है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर दुकान में वहाँ पे चाय समोसे बेच रहा है। तो वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है अभी वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और इस चीज़ को मैंने अपने कनाडा में जो हमारे मित्र हैं सरकार में, वहाँ पे उनसे मैं हमेशा कहता था कि संख्या तो बहुत आ गई है, लेकिन जितनी संख्या में आए हैं भारतीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिसकी कल्पना करके वो आए थे। जी, हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए यहाँ पर, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो योर एडवाइस टू पेरेंट्स वुड बी to think twice before sending their children to study in Canada. Absolutely. What we tried to do over a period of last 1.5 years almost, that those students who are already there and they have faced similar problems and difficulties, they could record their testimony in short videos and place it, put it on YouTube. So today if you go to the YouTube, you will find many such testimonies which will say, know these important details before you come to Canada. So जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या, और वो खर्च बहुत कर रहे हैं तो पैसा बहुत लग रहा है वहाँ पर, उतना पैसा देकर अगर वो पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम एक रिसर्च कर लें कि क्या उन्हें वो सब चीज़ मिल पाएगी जो वो सोच कर जा रहे हैं। और ये सलाह आप तब भी देते अगर आप ये इंसिडेंट ना हुआ होता तब भी देते? ये मैं पहले दिन से दे रहा हूँ, और मैं बार बार वहाँ से उनसे आर्जू मिन्नत भी कर रहा था कनाडा के जो अथॉरिटीज़ हैं कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और इसमें दोनों तरफ की परेशानियाँ थी। भारत में भी कुछ ऐसे एजेंट थे जो कि गलत ढंग से, गलत सूचनाओं के आधार पे इन छात्रों को भेज रहे थे कनाडा, और वहाँ जाकर तो फिर फंस गए वो, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ज़मीन बेच दी, उन्होंने गाँव गोरू जो उनके पास है वो बेच दी, उन्होंने ऋण लिया। अब वो लड़का या लड़की जब वहाँ पढ़ने गए तो फिर वो लौटने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था घर पे, और जब लौटेंगे तो किस मुंह से लौटेंगे। तो एक तरह से वो ट्रैप्ड हो गए अपनी ही सिचुएशन में। और उसके बाद जितनी दुखदाई सिचुएशन होती है, एक वक्त ऐसा था जबकि हर एक सप्ताह में हम 2 बॉडी बैग्स भारत भेज रहे थे बच्चों का, जो कि वहां पर सुसाइड उन लोगों ने किया क्योंकि वो घर नहीं लौट सकते थे, सभी कुछ बिक चुका है, और एक सप्ताह में 2 बॉडी बैग कम से कम वहां से आ रहे थे। ये एक पीरियड था उस समय का, मेरे समय में। अब 2022 में आप गए जी कनाडा? मेरे समय में, और इतना दुख होता था, मैं भी पिता हूं, इतना दुख होता था कि ये बच्चे वहां गए हैं, एक भविष्य के बारे में अपनी कल्पना लेकर गए हैं, और वो लौट रहे हैं एक बैग में। तो ये तो डबल वहमी हो गया है एक तरह से। एक तो पहले से प्रॉब्लम थी ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की, और ऊपर से अब ये जो रिलेशन जो इतने ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से और भी तनाव पेरेंट्स के, माता पिता के दिमाग मस्तिष्क में चल रहा है। बिल्कुल। तो दो चीज़ें मैं उन्हें बताना चाहूँगा आपके मार्फत। एक तो यह है कि रिसर्च ठीक से कर लें, दूसरा जिस तरह से सामाजिक स्थिति वहाँ की बिगड़ गई है, जिसमें खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो अब नॉन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे अटैक भी कर रहे हैं, वो बच्चों को धमका रहे हैं। कई बच्चे, हमारे पंजाब के बच्चे वहाँ गए, कई बच्चे यहाँ से मासूम बच्चे के रूप में गए, वहाँ जाकर क्रिमिनल बन गए, वहाँ गैंगस्टर बन गए, खालिस्तानी गैंगस्टर, खालिस्तानी क्रिमिनल। तो आखिरकार वहाँ पर किसी ढंग से उन्हें इन्फ्लुएंस तो किया जा रहा है, और वो इन्फ्लुएंस जहाँ तक मेरी खबर है ज़्यादातर ये जो खालिस्तानी गूंस हैं, गुंडे जो हैं खालिस्तान के, वो कर रहे हैं। और वो किस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पर? ये जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है
उसमें ये एक्सटॉर्शंस में है इन्वॉल्व, गन रनिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। तो जितनी गंदी चीज़ें आप सोच सकते हैं किसी भी समाज के लिए, सभी चीज़ें में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह से लगता है कि जैसे पाकिस्तान को हम मानते थे कि खालिस्तान का बड़ा सपोर्टर, लेकिन यहाँ तो कनाडा एक ज़्यादा उससे भी बड़ा सपोर्टर उभरता नजर आ रहा है। लगता था कि ये एक गणतंत्र है, लगता था ये एक जनतंत्र है, तो इसलिए ये हमारे दोस्त है, साथ है और हमारा दोस्त है। है, कॉमनवेल्थ में है। तो ये लगता था कि नहीं, इस तरह की बातें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए और किसी भी सरकार को समझना चाहिए, और खास करके कनाडा में जहाँ पर कि खुद उनके पास एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अभी भी एग्जिस्ट करता है क्वेबेक में। तो हम लोगों को ये लगता था हमेशा कि नहीं, ये तो समझेंगे, लेकिन शायद हम लोग गलत हो गए। Is there a conspiracy behind all this? Is something else that's going on bigger than what we can see or feel? It's all, I mean, in my analysis, most of the anti-India activities out of Canada is only for domestic political gains. Okay. There is no specific campaign to defame India as such. To defame India as such by Khalistanis, yes. But I won't blame entire Canada for that. Canadians are good friends. They are People are very objective people, very polite, very welcoming. So Canada as a country is a beautiful place to be. But I will not be able to say the same for the Khalistani terrorists and extremists out of Canada or their political backers. Ambassador Sanjay Verma, thank you very much for talking to us. Thank you so very much. Thank you. उधर इंटरनेट ने बेशक दुनिया को एक